وہ ملینیلز اور جین زی. کیونکہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, ان کے درمیان جو سرد مہری ایک سرد سی جنگ ہے وہ چھڑی ہوئی, اور اس پہ اتنی میمز بن رہی ہے. لوگ کہہ رہے جی ملینیلز کے یہ مسئلے ہوتے ہیں لیکن آگے جین زی کے اب یہ مسئلے ہیں. تو جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں نا ان دونوں مسئلوں سے, آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اور ساتھ میں دیکھیں ہم کوشش کریں گے, ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ دونوں کی رائے ایک جیسے کر دیں, دونوں کی اپروچ بہت ساری چیزوں میں ایک کر دیں, لیکن جو تھوڑا گیپ ہے نا اس گیپ کو ہم تھوڑا کم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اور میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ ہاں بھائی آج کل کی جو جنریشن ہے جین زی ہے اس کو کون کون سے مسئلے مسائل ہیں, اور ساتھ میں جین زی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملینیل سے بھی جناب ایویں یہ نہیں کہتے کہ ہم سمجھدار ہیں, تو دیر از اے ریزن کہ ہم کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں, کیونکہ ہم نے ایولیوشن دیکھی ہوئی ہے کہ گھر میں لینڈ لائن ہوتی تھی, لینڈ لائن کے بعد ہم نے پہ اسمارٹ فون آ گیا, ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے. جب انٹرنیٹ آیا ہم چھوٹے سے ہم نے وہ سب دیکھا ہوا ہے. ہم نے وی سی آر سے اب یہ جو ہم بڑے آرام سے, اب تو یو ایس بی اور ریکارڈ میں نام بھول رہی ہوں ڈیوائس کا, بڑے آرام سے آپ کے پاس تمام تر ڈیٹا موجود ہوتا ہے. تو آج ہم ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری حنا خواجہ. میں بلاتی جاؤں گی, میری خوبصورت لڑکیاں آتی رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آج نا مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے کیا بالکل جی. ہمارے ساتھ جی حنا جی موجود ہیں, اور حنا جی آپ ہیں آپ جنریشن ایکس ہیں. جنریشن ایکس میرے ساتھ آگے جناب, میرے ساتھ ہماری ایک اور زبردست ملینیل میں ان کو کہوں گی شرمین علی موجود ہے. شرمین آج تو ہم نے کہا ہم یہ جنریشن گیپ کلر پہن کے ختم کریں گے. ایگزیکٹلی, کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. بالکل. اور جناب ہمارے پاس ایک اور جنریشن, او ہو, اور انہوں نے بھی کالا پہنا. دیکھ لیں آپ. عمر خان جی السلام علیکم. کیا حال ہے عمر جی آپ کا؟ میں نے یہ کہا یار سب بلیک میں, یہ آج ہم سب بلیک پہن کے آ گئے ہیں. دیکھو اتفاق کی بات ہے. پتہ ہے کیا, یہ ایک اشارہ ہے کہ کتنا بھی جنریشنز کا فرق ہو جائے نا, کچھ چیزیں کامن رہتی ہیں. واقعی بہت زیادہ کامن ہوگی. اور میرے خیال تھوڑا سا کلر بریک دیں گے کیونکہ ہم ذرا نفسیات کے حوالے سے بات بھی کریں گے. تو ہمارے سے سائیکالوجسٹ سباشمی صاحب موجود ہے. السلام علیکم جی, کیسی آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا آپ نے بھی ٹراؤزر میں کہیں نہ کہیں وہ دے دیا, لیکن وہ فیملی وہی. میں یہ کہہ رہی تھی اتنا کلر بریک نہیں ہوا ہے. ہاں اتنا بھی نہیں ہوا, لیکن بھائی یہ یونٹی ہے. سب جنریشن تھاٹ پروسیس, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم ہے تو انسان نا. پلیز گرلز ہیو اے سیٹ. اچھا پتہ ہے ایک اور چیز ہے جی, کیونکہ ان کا جو شعبہ ہے نا, جو فیلڈ ہے, بڑے گرے ایریاز ہوتے ہیں. It's not black, it's all grey. کیا اچھی اپروچ ہے, بہت اچھی اپروچ ہے. گراؤنڈ آئے گی ہے نا. اچھا مجھے پہلے یہ بات تو آپ سب لوگ بتائیں کہ کیوں ایک جنریشن اپنی جو اپنے سے نیچے جونیئر جنریشن ہے, اور اس کے بعد پھر اس سے بھی اب آگے نیچے جونیئر جنریشن ہے, اس سے خوش نظر نہیں آتی, کیوں؟ I think it's very normal. کیونکہ آپ نے جو وقت دیکھا ہوا ہوتا ہے نا, اب آپ اس وقت سے نکل کر آگے آ چکے ہوتے ہیں, تو آپ اس کی اچھی اور پازیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. تو اب آپ کیونکہ اویئرنیس کے اس مقام پہ آ گئے ہیں, ایکسپیرینس کی اس جگہ پر آ گئے ہیں, تو پھر آپ دوسروں میں کیڑے نکالنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اچھا بٹ آئی فیل کہ اپنے بعد کی جنریشن سے زیادہ آپ اپنے پہلے والی جنریشن کو یہ سمجھ ہوتے کہ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, وی نو اٹ آل. جیسے کہ اب میری جو بیٹی ہے, جب میری بیٹی ہے اس کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ماما you don't know, let me do it, let me take care of it. تو یہ زیادہ ہوتا ہے نہ کہ آپ اپنے آگے والے کو یہ سوچیں کہ نہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے آگے آنے والا ہم سے زیادہ ہی ایڈوانسڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ایکچولی ورک کرتا ہے. ہم نے بھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے بھی کبھی نہ کبھی اپنے اما ابا سے یہ کہا ہوگا کہ نہیں امی اب ایسے نہیں ہوتا, آپ کو نہیں پتا نا, times have changed. اب I get to hear the same from my daughter. کیونکہ امی کو میں اس لیے کہی ہوتی تھی, میں بھی کہتی تھی کیونکہ امی آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے شاہکار کالج میں پڑھ رہا ہے, کیسا کیسا شاہکار اسکول میں آ رہا ہے, تو امی آپ کو نہیں پتا یہ بچوں کے دماغ کیسے کیسے کام کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کیوں یہ شکوے شکایت جنریشنز پہ رہتے ہیں؟ شکوے شکایت آئی تھنک کس حوالے سے رہتے ہیں, مطلب کہ کوئی جنریشن آپ ویسے بھی کسی خاندان میں دیکھیں گے کہ کوئی ایک بزرگ جو ہوگا نا وہ ویسے تبا ہوا بیٹھا ہوگا اپنی آنے والی جو ہے نا نسل سے, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا, یہ کوئی کیوں بھاگ رہا ہے, اس کو پتا نہیں, ہم تو کبھی بھاگے نہیں, ہم تو چپک کے بیٹھے ہوتے تھے زمین. ساری بات وہی ہے جیسے حنا نے کہا نا, تجربے کی, انسان سیکھتا ہے تجربے سے. اب آپ نے اتنا عرصہ گزار لیا, ہم کتنے ان سے گزرے, تو میں بھی اپنی بیٹی کو کہوں گی تم رہنے دو, ہم نے زندگی دیکھی ہے, وقت گزارا ہے, تمہیں نہیں پتا ہم نے کیا ہارڈ شپس کی ہیں, کس طرح سے جانا ہے. تو آئی تھنک یہ کیونکہ جب آپ
पॉलिश हो, कहते हैं ना प्रैक्टिकली, जब आप प्रैक्टिकली थ्योरी से ज़्यादा आपने प्रैक्टिकली काम किया है तो आप में कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं हम सही है। हाँ, डिफरेंसेस होती हैं उस दौर में, अब के दौर में। मैं यही सोच रही थी, मैं का टॉपिक, मैं कहा यार, तो मैं अपने चाइल्डहुड पे चली गई ना, सोचते सोचते कि यार वो वक्त कितना अच्छा था। हम लोग का वक्त बिल्कुल, मतलब आई फील हम लोग का टाइम बहुत अच्छा था। एक्स जनरेशन, हम एक्स में आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। वो वक्त नथिंग लाइक इट, हमारे आउटडोर गेम्स होते थे ना, हमें कुछ पता था कि ये मिलेनियल्स ने भी देखी आउटडोर गेम। मिलेनियल्स बड़े ब्लेस्ड है इस मामले में। हाँ, यस, हम लोग मतलब उस जमाने की बात करते तो उसमें We saw ऑब्वियसली the best of both worlds. द I बेस्ट ऑफ feel. बोथ वर्ल्ड्स, यस, वो भी हम आज देख रहे हैं। लेकिन सिंपलिसिटी थी, बरकत बहुत थी, एंड कुछ Honesty बहुत थी। Simplicity के में, फिक्र नहीं That's थी, changed. स्ट्रेस नहीं था। आई थिंक चाहे कुछ भी कर लो, पैसे कम भी थे, बरकत थी उसमें पैसों में। तो वो दौर अगर कंपेयर करें तो मैं तो वाकई वो बहुत अच्छा दौर था। कंपैरिजंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिंपलिसिटी। लेकिन आजकल सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है मिलेनियल्स और जेन ज़ी में, तो दोनों तो आपके घर भी बैठी हुई हैं, दोनों बेटियां आपकी। हाँ, लेकिन मैं भी उनमें ब्लेंड हो गई ना। अगर देखा जाए वो मुझ में भी ब्लेंड हो गए, उनके अपने थॉट प्रोसेस। हाँ, अगर बात कर लो कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बच्चे आर वेरी शार्प। कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर में या फोन में, मैं इतना नहीं स्मार्ट हूँ, सीख सीख के, या मेरा दिल भी नहीं चाहता, उफ, ये तो हम करना पड़ता है कि नहीं चलो कर लो, बट दे आर वेरी स्मार्ट। अवेयरनेस इन लोगों में ज़्यादा है। इन वाले बच्चों में जो है अवेयरनेस, मामा आपको नहीं पता, हमें करने दे मार्केटिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। तो मैं वहाँ कहती हूँ यस रियली आई डोंट नो एनीथिंग। आई एग्री। इस जनरेशन Yes. जेन जी ने एक चीज सिखाई है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। Yes. ये इन लोगों ने करना शुरू हाँ. किया है, जिससे हमने भी थोड़ा सा अडेप्ट किया है, और हाँ. यू नो हमने रियलाइज हम किया है hard कि working मेक्स ऑल हैं. द डिफरेंस। हम बड़े हार्ड वर्किंग जनरेशन थे, बस लगे हुए। उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस बेसिकली लगे हुए। ये जुगाड़ू भी है। ये जो अभी जो जेन ज़ी है ना, ये जुगाड़ू। और आप ये सोचें कि आपने can be जेन smart, but sorry to say, लेकिन it can be smart, but I still feel कि कई चीजों में shortcuts are not the smart option, क्योंकि वो short lived होता है। अच्छा, और साथ में देखिए Hard ये तो work does pay off, उसमें एक sustaining अभी तो जरा value होती पॉजिटिव है। बात भी करें ना, फिर आगे के जरा बिहेवियर्स हाँ. के वाले से बात भी करेंगे, क्योंकि हम अक्सर अपनी जब टीम के साथ यहाँ पे बैठे होते हैं, हम कह रहे थे कि भाई खैर इसका आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं हवाला भी से आपको दे रहती हूँ कि जैसे हम लोगों में ये सुकून था कि हम लोग 2.5 घंटे टिक के बैठ के एक फिल्म देख सकते हैं। अब ये जो आगे हम अपने जेन ज़ी में देखते हैं, मैं अपने छोटे भाई को देखती हूँ, नहीं देख सकता। अच्छा, सही कह उसके रही बाद हो। फिर एक हो गया, अब इसीलिए उनको देखते हुए यूट्यूब ने भी फिर आगे शॉर्ट फिल्म बनाना भी शुरू कर दी, और अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी आने लग गई हैं। क्योंकि अब ये रील्स जो बन रही होती है ना 1.5 मिनट की, और अब 1.5 मिनट से भी कम होगी, तो लोगों का स्टेमिना नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे को देखती हूँ जो कि भी वो ना जनरेशन अल्फा है, वो जो अल्फा है वो ऐसे वो टिकता ही नहीं किसी चीज पे। तो मुझे होता है कि इसका तो फोकस और ये इसका दिल कितनी जल्दी भर जाता है चीजों से। हाँ, true, तो ये 100%. Span of ना- attention बहुत जी, short हो गया। एक तो टेंशन का जो है टाइम स्पेन वो कम हो गया, और दिल बहुत जल्दी भर जाता है। तो मैं रिश्तों के वाले से बात तो करूंगी, लेकिन मुझे बताएं, क्योंकि नफ्सियात आप समझती हैं, ये क्या नफ्सियात है हर जनरेशन की। हाँ, ये ऐसा छोटा होता है- बड़े से कुछ नहीं है, बड़ा छोटे से कुछ नहीं है, हम आने वाले से कुछ नहीं है, सब परेशान है। वाई? अच्छा, वो इसलिए कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना इस तरह से वायर्ड है कि जब उसके जो एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज़ या जो कल्चर की चीज़ें होती हैं ना, उनको जब चैलेंज कोई करता है ना, या किसी भी वजह से चैलेंज होती है, तो उनके अंदर ना एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है ब्रेन के अंदर। उस डिस्कम्फर्ट को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो उस डिस्कम्फर्ट की वजह से अब आप जब डिस्कम्फर्ट हुआ है अंदर, तो आपने कुछ करना है ना, तो आउट ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट वो ब्लेमिंग शुरू होती है कि यू नो कि नहीं इनको ये हमारे जैसे नहीं है, हम तो वो जैसे आप इनिशियली कह रही थी, ठीक है, वो वहीं से आता है, क्योंकि वो अंदर अनकंफर्टेबल होते हैं। खुद को कंफर्टेबल करने के लिए वो कंपैरिजंस फिर कर रहे होते हैं। ओ, तो ये असल में सारा मसला ये है कि आपने खुद को कंफर्टेबल करना है, खुद को मुतमईन करना है। एक्सेप्टेंस हम हुई ना, आसमां से नहीं है। सारी बात तो ये हो गई ना एक्सेप्टेंस की। द वे यू थिंक, हम पहले ज़माने में हमें सब चीज़ें नहीं पता था, लेकिन अब अवेयरनेस हमें भी बहुत हो गई है कि माइंड थॉट प्रोसेस, आपकी पॉजिटिविटी आप पहले से मैनिफेस्ट करते हैं। पहले एक ज़माने में हम ये सब चीज़ें जानते भी नहीं थे, लेकिन अब हमें अवेयरनेस हुई है। स्पेशली आई थिंक हम लोग में ज़्यादा हुई, बच्चों में भी फिर भी नहीं आई। तो उस पर जब इम्प्लीमेंट करो तो रियली इट वर्क्स। अब एंड आई थिंक हमें, मैं कभी ये नहीं है कि इसको नहीं आता, मैं हमेशा एक्सेप्ट किया है कि नहीं यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे सीखना पड़ेगा। सारी बात ये है। तो वो आपके ब्रेन में कि इट्स नॉट दैट कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सब कुछ आता है, कि नहीं यार अभी ये भी नहीं आता। ये एज एन इंडिविजुअल अप्रोच भी आपकी है ना? यस, एंड एज एन इंडिविजुअल अप्रोच, एंड प्लस आपको
आपका थॉट प्रोसेस, देखो हर चीज़ ब्रेन, आपका ब्रेन जो है ना इतना सा वर्क करता है, इसको अगर हम चलाएं तो बहुत कुछ, तो वही बात है हम इतने उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, इतने बिजी हैं, हम काम में लगे हुए, लेकिन कभी बैठ के सुकून से सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप सुकून की ज़िंदगी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अडॉप्ट नहीं किया है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि बैठ के कभी सोचना भी चाहिए, बट लाइफ हैज़ बिकम वेरी बिजी और कॉम्प्लिकेटेड। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि जैसे हम अगर बेबी बूमर्स वगैरह की बात करें, जो कि जनरेशन एक्स, इनसे पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना लोड ले लिया है ना अपने ऊपर, बहुत सी चीज़ें अपने ले ली हैं कि अब बहुत सारी जगहों पर टाइम हो गया उसको ऑफलोड करने का। तो हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो चीज़, क्योंकि जो एब्जॉर्ब कर चुके हैं, ऑफ कोर्स एक पैमाना भर जाता है, फिर उसको निकाल भी रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, जैसे मैं आप लोगों की बात करूँ जनरेशन एक्स की, आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आप लोग के साथ जो अभी जितनी हम एक तरह से कैसे कि जो मेन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, एंटैगनिस्ट, तो वो मोस्टली अभी मिलेनियल्स हैं, तो आपने उनमें, और क्योंकि अब तो जेनजी भी आप देख रहे हो साथ काम करें, तो आपने उनका क्या वर्क एथिक्स कैसे देखे हैं? दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट आई थिंक, बिकॉज वही वाली बात है कि जो उन्होंने कहा था ना, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इट्स नेवर ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल, हाँ, राइट। तो अब वो जो मुझे लगता है कि जो इनके साथ हम काम करें, जो मिलेनियल्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा रिलेट करना इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो हमारी कोर ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ थी वो मिलेनियल्स भी उसके साथ बड़े हुए हैं, एंड दे अंडरस्टैंड दैट एंड दे कनेक्ट विद दैट। उसमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं क्योंकि एक सर्टन स्ट्रक्चर था जो उस जनरेशन को मिला है, एक सर्टन डिसिप्लिन था जो उस जनरेशन को मिला है। जेन जी को वो डिसिप्लिन नहीं मिला, उनको वो स्ट्रक्चर नहीं मिला। जेन जी को कोविड ने भी बहुत इफेक्ट किया, सो दैट होल कॉन्सेप्ट कि जी आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आइसोलेशन में भी काम करने के आदी है, उसमें मी बहुत आगे आ गया है। बुरी तरह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो अपनी ज़ात के बारे में पहले सोच रहे होते हैं। अच्छा, हमारी जो जनरेशन थी एक्स, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन लोगों ने वो दौर देखा था जब पाकिस्तान बना, जब उनके पेरेंट्स ने वर्ल्ड वॉर्स देखी, तो वो दुनिया का एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो था ना, उसने उनके अंदर एक बियॉन्ड योर सेल्फ वाली कैपेसिटी बिल्ड की थी। तो हमारे माँ बाप, जो मुझे याद है, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, उसके बारे में सोचते थे। वो पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचते थे। तो मेरी अपनी बहन ने, जो एक्सेस हैं, एक दफ़ा अपने बच्चों को कह रही थी कि तुम लोग वापस मत आओ, पढ़ाई करो, वहीं रहो, बाहर रहो, ये वो। तो अम्मी अखबार पढ़ते पढ़ते और समथिंग शी लुक्ड अप एंड शी सेड, शुक्र है हमारे माँ बाप तुम जैसे नहीं थे, वरना पाकिस्तान ना बनता। क्योंकि पाकिस्तान बना इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने, बूमर्स ने, इनफैक्ट नो नहीं, बेबी जो बूमर्स है, ये तो 1952 की बात है, लेकिन जो उससे पहले की जो जनरेशन 46 से बूमर्स शुरू होते हैं, ठीक है, हाँ, उन्होंने पाकिस्तान का सोचा, आने वाली जनरेशंस का सोचा। ये वो बच्चे उन्होंने एग्जैक्टली जो सिर्फ- पैदा हुए ना, जो सोचे नहीं, लेकिन अगर 46 टेक्निकली तो 46 में तो आप पैदा हुए ना, तो सिर्फ इसका मतलब है जो बेबी बूमर से भी जो पहले की जनरेशन है, जिनके Exactly. बच्चे परवान चाहे, जिनके बच्चे बेबी बूमर हैं, जैसे हमारे फिर जो जनरेशन ये थी जो उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को आगे लेकर चले, उन्होंने भी अपना वो हिस्सा डाला ना उस चीज में। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 अब वो जो दुनिया सुकड़ना शुरू हुई है ना, एंड मोस्टली आई वुड से ये जो डिजिटल बच्चे हैं, जी 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 जी, तो वो सुकड़ते 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 हर चीज उनके हाथ में आ गई है, हर चीज थोड़ी आसानी से उनके पास आ गई है। इवन रिकग्निशन जो हम अपनी इंडस्ट्री में देखते हैं, अभी आपने डेयर ड्रामा किया है, लेकिन आपने कहा, उस दिन एक बच्ची ने मेरे सामने कहा कि नहीं, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी मेरा राइट है। तो हम जो एक्सेस थे ना दो, वहां पे हमने एक दूसरे को देखा, तो हमने हम तो अभी कहा खुद तक हमने तो celebrity कभी register लफ्ज ही नहीं अपने किया। लिए इस्तेमाल किया, सोचा भी नहीं है। हाँ, कभी भी नहीं। तो वो सोच का फर्क यहाँ आ गया है। हमारा अभी भी वो ओल्ड स्कूल वो है कि मेहनत, प्रोफेशनल एथिक्स में आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी रिसर्च, ये काउंट ये बड़ा मैटर है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नदिया, कितना शानदार टॉपिक है ना, मजे का टॉपिक है ना। बता नहीं सकती, मैंने इस चीज से सीखा है। मैं अपना आपको बताऊंगी कि अब से कोई 10 इयर्स पहले मेरे बच्चे छोटे थे, जब मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, उनको अपनी स्टोरी सुनाते थे तो वो सुनते से इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप उनकी एज में चले जाएं, उनको अपनी एज में मत लेकर आए। तो वो मुझे कितना क्लिक करा कि वर्ड के, मैंने कहा ये बात उन्होंने मुझे मसले हल कर दिया कि आप इस वक्त की जनरेशन की एज में जाएं।
वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या करना चाहती है। तो हम सब पेरेंट्स को, अदरवाइज पेरेंट्स को, सबको अपनी स्टोरीज से जो स्टोरीज हैं, लेकिन आज की जनरेशन की स्टोरीज को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल तो सही। प्लीज ये चीज आगे तक लेके चलें। हुमैरा, बहुत मुझे ये अच्छे- बताएं कि आपका कौन सी जनरेशन से ताल्लुक है? मैं तो 90-80 वाली में से हूँ। अच्छा ठीक है, यानी कि आप 90-80s में, ठीक है। तो आप फिर इसमें लाइक करती हैं या तो मिलेनियल में से? हाँ, मिलेनियल में। 81 onwards हैं तो millennial हाँ हैं। ठीक है, तो आप कस- मिलेनियल्स कस में में आ रही आएंगे। हैं। लेकिन मेरे कस साथ में में एक चीज़ ये देखी कि जो अडेप्टेबिलिटी है ना, ये हमारी जनरेशन एक्स में और हमारी जो मिलेनियल्स है ना, उनमें बड़ी है कि वो जल्दी चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है लेकिन कर लेते हैं। अच्छा नहीं, आई फील मिलेनियल्स में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मिलेनियल्स ने जनरेशन एक्स से सीखा हाँ। और जेनजी से भी सीख सीख रहे हैं, हाँ। जनरेशन एक्स ने यू नो I agree. जनरेशन हाँ, एक्स ने बिल्कुल, अपना हाँ। टाइम गुजारने के बाद और मिलेनियल्स में अपने वैल्यूज इंस्टिल करने के बाद जनरेशन जेन जी की सुनने से मोस्टली इनकार कर दिया कि नो, यू डोंट नो, वी लिव्ड आवर लाइफ अ पर्टिकुलर वे एंड वी आर कंफर्टेबल विद यू नो हाउ वी आर। मिलेनियल्स को अडेप्ट करना पड़ा है, क्योंकि मिलेनियल्स के बच्चे जो सबसे हैं ज्यादा, जेन हाँ। जीज हैं, जी। तो हमने उनसे भी डील करना है, हमने अपने पेरेंट्स से भी डील करना है जो जनरेशन अच्छा, एक्स सिर्फ उनसे नहीं डील करना जनरेशन एक्स से। अच्छा, जो मिलेनियल्स, मोस्टली मिलेनियल्स के जो पेरेंट्स हैं वो हैं जनाब बेबी बूमर्स, ठीक है। तो वो बेबी बूम से भी डील करें, फिर आगे से उनसे भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो हम ऐसी बादब, वैसे अगर मैं मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स की बात करूं तो ये बड़े बादब लोग हैं, तो इन्होंने अडेप्ट ही किया है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो बात यही करेंगे कि लोग ये आजकल बहुत शिकायत कर रहे हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं ना, इनमें वो अदब, वो लिहाज नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।